Welcome students, my name is Abhay More from More Academy. In this video, we are understanding the diagrams which are needed in our project documentation. So let's begin about understanding these diagrams. So let's understand about the importance of this documentation diagram. So documentation diagrams are quite important. First of all, it simplifies your complex information. Second, it is helping us to communicate between the developers, designers, as well as various stakeholders of your project. It helps us in our project planning as well as project management. It is helping us to go for maintaining our project for a longer run because a project can have a modification after some time. And at that time, you again require to understand what was the system. And it is easily understood with the help of these all diagrams. Now, the different types of documentation diagrams are ER diagram, like entity relationship diagram, the UML diagrams, which includes the use case, class, sequence, and activity diagrams. It also has a flowchart, DFD, a very important diagram that terms as your data flow diagram. We also have wireframes and UI mockup, which are used for visualizing the user interface. But before you're going for all these diagrams, first of all, we will understand what is exactly an event table is. So an event table is a table that documents system reaction to different event showing triggers, actions and outcome. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सैंपल दिया हुआ है जहां पे मैंने 4 कॉलम बना के रखे हैं इवेंट है ट्रिगर है एक्शन है आउटकम है So when an event occurs like order placement, why this order placement event is getting triggered or through which the order placement event is getting triggered? It has been triggered by using buy now. When the user clicks on buy now, the event triggered called as order placement and actions will be taken as maybe creating new order or maybe updating the stock and the outcome will be what? Order confirm. So this way, this event table is helping us to analyze the system behavior. It helps us to define input, processing and output as well as it has been used whenever we are planning to do a requirement analysis and we are designing the system workflows as well as deciding the business rules. Event table can be also used many a times when you're planning to go for a database design because it helps us to understand the entire events which are getting occurred in your project. Let's move ahead with the next type of chart which is very important called as Gantt chart. So what is exactly a Gantt chart is? A Gantt chart is a visual timeline used in project management to show the task, their duration and dependencies in a bar chart format. It helps in planning and tracking the progress. The purpose of the Gantt chart is visualizing the project schedules with start and end dates. It shows the task dependencies like which task must be completed first and on. It helps in resource allocation and deadline tracking. देखो प्रोजेक्ट में एक बंदा काम नहीं करता रहता प्रोजेक्ट में बहुत सारे टीम्स भी काम करते रहते कौन सा चीज पहले होना चाहिए कौन सा चीज बाद में होना चाहिए उसका स्ट्रीमलाइन करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में is been done with the help of the Gantt chart. It identifies the bottlenecks and delays in the early situations. We will understand why this particular delay may occur in our system. And we are using this Gantt chart in project planning as well as tracking. So when you're planning it and tracking our actual execution at the time, Gantt chart will be helping you a lot. It helps us to managing the multiple tasks with deadline, and it also helps us in team collaboration by assigning the tasks and monitoring these all tasks which are being done by us. So this is a small example I had given you. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना कर रखा है Gantt चार्ट का और ये हो गया उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे टास्क दिया हुआ है टास्क का स्टार्ट डेट क्या है ईयर वाइज लिखो आप लोग मैंने एक सैंपल लिखा हुआ है एंड डेट क्या है ड्यूरेशन कितना होना चाहिए डिपेंडेंसी कुछ है इसके लिए कि नहीं है राइट सो दिस इज व्हाट अ टेबल फॉर द Gantt चार्ट एंड दिस इज एक्चुअल presentation of the Gantt chart. So you will understand the way in which your project should be processed. So this is way by which you are able to go for present your Gantt chart. So this is a small Gantt chart for our e-commerce website, a sample given to you. You can download this particular presentation PDF. I will be giving the link in the description through which you are able to go for downloading this PDF also. So you can use this sample and understand the contents more. Moving ahead, another diagram which is quite important in a UML that is termed as your use case diagram.
काफी इंटरेस्टिंग दिखता है। देखो ये यूज केस डायग्राम मैंने यहाँ पे वापस एग्जांपल लिया है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का ही, जहां पे मैंने दिखाया हुआ है एक कस्टमर है एक्टर एंड फिर कस्टमर किससे किससे कोऑर्डिनेट करने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस ऑफ द यूज केस डायग्राम। So use case diagram shows the system functionalities and how the different users को यहाँ पे बोला जाता है actor, and how they are interacting with each other। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कंप्लीटेड चेकआउट में आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी है, आपका आइडेंटिफाइंग प्रोवाइडर भी है, आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी है, आपका एडमिन भी है, सभी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है ही है। जब व्यू आइटम में जाते हो तो आपके पास मेजरली दो ही चीज काम किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर। सो कैसे एक्टर्स एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने वाले हैं उसका एक सिस्टम, हम लोग हर एक प्रोसेस के लिए एक यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। when we are using it we are actually using it in the initial phases of designing the system requirement। like ये एग्जांपल वापस एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट में एक्टर से लाइक कस्टमर, अब ये एक चार्ट बना के हो गया, वैसे आप यहाँ पे एडमिन को डाल सकते हो, फिर एडमिन क्या क्या एक्टिविटीज करता है और वो एक्टिविटीज में वो कौन से एक्टर के साथ कनेक्टेड है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ डायग्राम वी कॉल इट एज व्हाट यूर यूज केस डायग्राम। The next type of diagram, but before that I will just tell you all the key activities done by us। very important, हम लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमएससी करना है या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना है, पीएचडी प्रोग्राम करना है, यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड बिकॉज इतने सारे कोर्सेस आ जाते हैं इतने सारे जगह से, तो कौन सा चीज हम लोगों ने करना चाहिए, कौन सा चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट्स आपका रहेगा तो यू कैन प्लीज कनेक्ट विद अस, नंबर पहले से दिया हुआ है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी हेल्पिंग यू टू and we will be guiding you more precisely and helping you to check and to get the appropriate universities and appropriate course। We also works majorly in study abroad, तो कंट्री के सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी के सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन है, लोन है, वीजा है, एकोमोडेशन सपोर्ट है, ये सब के लिए फ्री काउंसलिंग अपने यहाँ पे होता है, फ्री प्रोसेस भी होता है, अपने साइड से प्रोसेसिंग फीस कुछ भी दिया नहीं जाता। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का फीस रहेगा, वीजा का फीस रहेगा, वो तो आपको भरना ही है। मूविंग अहेड, प्लेसमेंट ड्रिवन सर्टिफिकेशन कोर्सेज अपने यहाँ पे खुद के यहाँ पे चलता है, दे आर मेजरली मंस्टैक एज वेल एज अवर साइबर सिक्योरिटी एंड बीएसआईडी का कोचिंग है ही, एज वेल एज एंट्रेंस का कोचिंग भी अपने यहाँ पे होता है मोरे एकेडमी में। तो ये सब एक्टिविटीज अपने यहाँ पे होता है। तो चलो मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम दैट इज टर्म्ड एज योर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। क्वाइट इंटरेस्टिंग, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम दिया हुआ है और चार मैंने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, यहाँ पे कस्टमर है, मैनेजर है, मील डिलीवरी है, एज वेल एज एडमिन है। ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम लाइक स्विगी एंड ऑल, राइट। तो कस्टमर क्या क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करता है, नया कस्टमर आ जाता है, कस्टमर को क्या मिलता है, व्यू करने मिलता है प्रोडक्ट्स को, ऑर्डर का कंफर्मेशन मिलता है। एडमिन को क्या मिलता है, क्रिएट, एडिट, डिलीट यूजर्स करने को मिलता है, एडमिन को व्यू करने को मिलता है। मील डिलीवरी को क्या मिलता है, रिक्वेस्ट डिलीवरी मिलता है, कंफर्म डिलीवरी मिलता है। तो हाउ दीज ऑल आर इंटरैक्टेड और इंटरलिंक विद ईच अदर, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन अवर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। सो एक हाई लेवल का ओवरव्यू मिलता है जब आप देखते हो आपके कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में, जहां पे आपको समझ में आता है कि इंटरेक्शन कैसे चल रहा है एक दूसरे एंटिटीज के साथ में। दैट कैन बी इजीली सीन बाय यू व्हेन यू आर लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये भी याद रखो, ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है सिस्टम का बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि when they develop the project they go on developing the endless project। you cannot develop the endless project, you need to create various version, that ये वर्जन में मैं इतना तक दूंगा, बाद में नेक्स्ट वर्जन में ये चीज मैं ऐड करूंगा, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम ग्रोज। यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग इन सिंगल वर्जन, अदरवाइज आपका वर्जन का भी डिप्लॉय होने वाला ही नहीं है। तो ये छोटा सा एग्जांपल में जो बताया था उसका ही एक छोटा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है फॉर द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। Now moving ahead, there is the next type of diagram which is termed as your entity relationship diagram। काफी इंपॉर्टेंट है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास दो एंटिटीज है, वन इज योर स्टूडेंट एंड सेकंड इज योर कोर्स। ना स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, किसको, कोर्सेस को स्टडी कर रहा है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया एंड कोर्स एक दूसरा एंटिटी हो गया। फिर ये बाकी सब क्या है सर, स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एज है,
कोर्स का आईडी है, कोर्स का नाम है, दीज आर टर्म्ड एज योर एट्रीब्यूट्स। तो कितने एंटिटीज अपने प्रोजेक्ट में है और हर एक एंटिटी के कौन से एट्रीब्यूट है वो समझ में आता है, एंड ये एंटिटीज एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ योर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ये सब आपको समझ में आता है बाय यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो टेबल्स को भी, रिलेशनशिप को भी, और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था यहाँ पे कि स्टूडेंट है एंड कोर्स है, ये दोनों क्या है, आपके एंटिटीज है, and whereas these all are termed as your attribute, and this is nothing but a relationship among these entities. Now depending on your project आपके पास ज्यादा entities रहेंगे और वो entities आप एक दूसरे से कैसे related है वो बताते जाओगे, and that's at the end we'll be looking at the full-fledged entity relationship diagram. Many times the database schema diagram also looks like your entity relationship diagram, because over there also we will be creating our one to many relationship, many to many relationship, or many to one relationship, and so on. So next type of diagram, this kind of diagram, somebody also tells me that this is nothing but the entity relationship diagram, or this is nothing but a class diagram. देखो ये तो database schema का diagram है. This is not a class diagram. Class diagram comes in our object oriented program, right? So this can be presented as an entity relationship diagram. थोड़ा सा आपका UI बदलना पड़ेगा आपको. ये जो यहाँ पे दिए हुए मैंने ID और name, that should be shown like the attribute which has been shown by me over here in my this ER diagram. Then this database schema diagram can be also been shown as a ER diagram. पर attribute ऐसे नीचे नहीं आने चाहिए. Attribute should be shown as the attribute of that entity. और ये आ गया आपका relationship. यहाँ पे one है मतलब एक author, और यहाँ पे होगा book author मतलब many books of the same author. So this is one and this is many. So this is the relationship called as one to many, right? So this way also it is possible for you to present your ER, but just थोड़ा सा change करना. Do not present it the attribute like this. Present the attribute the way in which it has been designed for the entity relationship diagram. So database schema diagram ये आपको basically help करता है प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप PKF के, राइट? तो उनका रिलेशनशिप डिजाइन करने के लिए आपके पास आता है डेटाबेस स्कीमा डायग्राम. कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? डेटाबेस क्रिएशन करने से पहले, इंप्लीमेंटेशन करने से पहले, देन वी कैन यूज द कांसेप्ट कॉल्ड एज डेटाबेस स्कीमा डायग्राम. सो डेटाबेस स्कीमा डायग्राम मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है जो आपका लाइब्रेरी सिस्टम से रिलेटेड है. दिस कैन बी प्रेजेंटेड एज अ ER डायग्राम as I had told you. Let's move ahead. A very important. This is I had just shown you level 0. There are morely I can say 4 levels of DFD. Level 0, level 1, level 2, level 3. राइट? तो 4 लेवल्स में आता है. लेवल 0 DFD में से बताया हुआ है. अच्छा, ये वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे और भी लिंक्स दिए हुए हैं. Now those links are helping us to go for understanding this diagram in detailed more. The purpose of this video is just to help you to understand and give a brief. At least you should know that this is called as what a DFD. This is termed as what a ER. Many of the students are asking me, sir, ये diagram को हम लोग क्या बोलते हैं? So this is the introduction of these all diagrams. So context level का level 0 का DFD है. Purpose simple है. आपको high level flow मिल जाता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, customer orders for the food to the food ordering system. The food is what been ordered to the kitchen, and the restaurant manager, also called as admin. Admin will be getting the bill, as well as the bill payment has been done, and the admin will be getting the management report. And over here, once the bill has been done, the receipt is being given to the customer. तो इस वे से हम लोग लेवल 0 बनाते हैं. लेवल 0 के बाद में और डिटेल में जाते हैं. लेवल 1 में, लेवल 2 में और भी डिटेल में जाते हैं. लेवल 3 में और भी डिटेल में चला जाता है जब हम लोग चालू करते हैं DFD के लेवल्स के. कहाँ पे यूज करेंगे? इनिशियल फेज टू अंडरस्टैंड द डेटा मूवमेंट वी आर यूजिंग द DFD. सो ये छोटा सा जो DFD बनाया हुआ है, इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है बेसिकली ओवर हियर. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन. PDF आपको मिल जाएगा, वहां पे आप डिटेलिंग में तरह देख सकते हो. लेट्स मूव अहेड. A very nice chart which you all had tried when you write in the program, that is termed as your flow chart. बहुत प्यारा रहता है. बिगिन करेंगे, फिर यूजर लॉगिन करेगा, फिर यूजर का लॉगिन इंफॉर्मेशन डालेगा,
फिर लॉगिन अगर करेक्ट होगा तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, रॉन्ग होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पासवर्ड एरर होके एंड हो जाएगा. So that is what a flow chart. The flow chart are basically representing the step by step logic. लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फ्लो चार्ट. अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको एक लॉजिक कोडर को समझाना है, देन ही कैन वेरी इजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. सो एल्गोरिथम को समझाने के लिए आइदर वी आर राइटिंग सूडो कोड्स और वी आर डिजाइनिंग व्हाट द फ्लो चार्ट. So this is the very simple flow chart for the sake of your user log. Next type of chart is basically your decision tree. बहुत प्यारा चीज है डिसीजन ट्री. लाइक एज इज लेस देन 40 होगा और इनकम अगर लेस देन 166 होगा तो एवरेज मंथली सेविंग कितना रहेगा, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं लोन देना है कि लोन नहीं देना है. So what are the different options are there? Depending on that, we are deciding whether the granting of the loan amount will be done or not. So this kind of tree which help us to take a decision like either grant the loan or do not grant the loan. This can be done by using a decision tree. It looks very nice. So it represents the complex decision making logic and it has been used for defining the business rules. So business rules के लिए आप यूज करते हो यहाँ पे डिसीजन ट्री. तो एक बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम मैंने आपको एक सैंपल दिया हुआ है ऑफ अ डिसीजन ट्री. कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही करोगे तो अच्छी बात है, इफ नॉट देन इज दैट्स ओके. सो कैन यू प्लीज टेल अस दैट कि ये चार्ट हम लोग कौन से टूल से बनाए. डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट टूल्स with the help of which you are able to go for designing these all diagrams for your documentation. Let's move ahead with the next diagram that is termed as your class diagram. Your database diagram and your class diagram little bit the same. सिर्फ क्लास डायग्राम में हम लोग क्लासेस और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को यूज करते हैं. तो आपका सुपर क्लास कौन सा है, सब क्लास कौन सा है, क्लास में कौन से एट्रीब्यूट्स है. ऊपर पहले आएगा क्लास का नाम, फिर बाद में आएगा यहाँ पे क्लास के एट्रीब्यूट्स लाइक मेंबर वेरिएबल, और यहाँ पे आएंगे क्लासेस के फंक्शन दैट इज मेंबर फंक्शन. So this is what been mentioned in our class diagram. It has been only drawn when exactly you are using the object oriented concept. If you are not using the object oriented concept while developing your project, you are not defining the classes, you are not using ORM, तो आप लोगों को क्लास डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, because this shows us object, attributes, methods and relationship between that object oriented system. कहाँ पे यूज करेंगे, जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक आप जावा यूज कर रहे हो, जावा में हाइबरनेट को यूज कर रहे हो, मे बी यू आर यूजिंग पाइथन, पाइथन में उसका ओआरएम को यूज कर रहे हो, लाइक डॉटनेट यूज कर रहे हो, आप एंटिटी मॉडल को यूज कर रहे हो, और यू आर डिजाइनिंग योर ओन मॉडल, एमवीसी पैटर्न के प्रोजेक्ट बना रहे हो. सो मॉडल्स बनाते मतलब क्लासेस बनाते. So over there, you are allowed or you required to go for drawing what your class diagram, which consists of, again, I'm telling you, class name, member variables and member functions, and how these classes are related with each other. So this is the diagram which is termed as your class diagram. Now this is a very interesting diagram called as the sequence diagram. So sequence मतलब पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, that is termed as what your sequence. So it is basically a diagram which shows the interaction in a time sequence. It also helps us to visualize function calls and message passing. ये एग्जांपल देखोगे तो कस्टमर है, ओपन द एप्लीकेशन तो मेन पेज में जाएगा, मेन पेज में उसका डिस्प्ले होगा मेन्यू का लिस्ट. सो मेन्यू लिस्ट पेज यहां तक आ गया, और मे बी द कस्टमर विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस होगा तो वो जाएगा ऑर्डर पेज के पास, और ऑर्डर पेज के बाद में उसका ऑर्डर अमाउंट मिलेगा एंड देन वो चेकआउट कंप्लीट करेगा. सो दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस. पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा. ये अगर आपको डिपिक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो सीक्वेंस डायग्राम. Let's move ahead. Another type of diagram called as activity diagram, little bit like a flow chart only. So this diagram little bit looks like a flow chart only, but the difference is what flow chart is basically used for displaying or helping us to understand the algorithm. कोडिंग के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, but this has been used for understanding our workflow steps. So this is used for what your workflow steps when we are using it, whenever we are using the modeling for the business process. Over there we are using this activity diagram. जैसे यहाँ पे देख सकते हो, activity has been started, displaying the screen for sign up or login. Then user selected the sign up page,
or user may selected the sign in page. राइट, साइन अप होगा तो नया यूजर रजिस्टर होगा, और साइन इन होगा तो देन यूजर इज ऑलरेडी व्हाट वी कैन से रजिस्टर्ड, नाउ ही इज प्लानिंग टू गो फॉर अ लॉगिन। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर लॉगिन करोगे, सिलेक्टेड लॉगिन होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे डिस्प्लेइंग द लॉगिन स्क्रीन। सो लॉगिन स्क्रीन से होम पेज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग अ फ्लो चार्ट, राइट। बट यूजर का एक्टिविटीज कैसे होने वाला, दैट इज बीन प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ योर एक्टिविटी डायग्राम। So let's move ahead with the next type of diagram, which is quite interesting one called as the state diagram. जब भी आपका ऑब्जेक्ट रिएक्ट वगैरह जो है, रिएक्ट बोलो एंगुलर बोलो, यहाँ पे ना अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट बहुत बार बदलता है। लाइक मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, अगर मैं लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई देगा नहीं, मैं लॉग ऑफ होगा तो निकल जाएगा। मैं जब साइन अप कर लूंगा, जब मैं साइन इन कर लूंगा तो ऊपर वापस रजिस्टर दिखना नहीं चाहिए। सो इट इज व्हाट द स्टेट इज व्हाट गेटिंग चेंज। तो अगर ऐसा स्टेट चेंज होता होगा तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपके स्टेट्स को बाय यूजिंग द स्टेट डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल है, ट्रिगर्ड द सेंसर, रेड लाइट होगा, देन टाइमर गोज ऑफ, येलो आता है, येलो के बाद में क्या आता है, ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद में वापस क्या हो जाता है, रेड आ जाता है। सो द स्टेट आर व्हाट गेटिंग चेंज व्हेन वी आर यूजिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग मल्टीपल स्टेट्स। जैसे मैंने बता दिया कि एक ही बटन है साइन इन के लिए, साइन इन होने के बाद में वो लॉग ऑफ हो जाता है, राइट। ऊपर दिखाई देता है मुझे साइन इन, मैं साइन इन कर लिया, मैंने यूजर आईडी पासवर्ड बदल दिया और डाल दिया, करेक्ट हो गया तो मैं लॉग इन हो गया, तो ऊपर क्या दिखाई देना चाहिए मुझे, साइन आउट दिखना चाहिए, वापस साइन इन दिखना नहीं चाहिए, राइट। या फिर लॉग ऑफ दिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ साइन इन, राइट। तो अगर ये ऐसा स्टेट अगर आपका बदलता होगा तो वहां पे आप यूज कर सकते हो किसको, स्टेट डायग्राम्स को यूज कर सकते हो। यूजर इंटरफेस डिजाइन अगर आपको करना है तो आपको सब लोगों को मालूम है, इसको वायर फ्रेम बोलते हैं हम लोग। फिग्मा नाम का टूल आता है जहां पे आप वायर फ्रेम को काफी अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। पेन पेपर पेंसिल लेके भी आप कर सकते हो। वायर फ्रेम मतलब मालूम है आप लोगों को, एक बेसिक डिजाइनिंग आपका पेज का, फिर उसका मॉकअप बनाया जाता है, और मॉकअप के बाद में आपका प्रोटोटाइप बनता है। सो ये 3 फेजेस में आपका डिजाइनिंग होता रहता है, वायर फ्रेम, मॉकअप एंड व्हाट योर प्रोटोटाइप। So purpose is simple, showing the layout of the user interface screen. When we are using it, we are using it before finalizing the design. So यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, पहले वायर फ्रेम बन गया, फिर मॉकअप बन गया, और फिर क्या बन गया आपका, प्रोटोटाइप बन गया, राइट। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट। देखो आप क्या करते हो ना, आप पूरा कोड डिजाइन बना के फिर चले जाते हो, फिर सामने वाला बोलता है कि ये नहीं चाहिए ये चाहिए, सो दैट इज बैड ना। तो पहले वायर फ्रेम दिखा दो, तो एटलीस्ट ही अंडरस्टूड दैट हाउ द प्लेसमेंट्स आर बीन डन। फिर पसंद पड़ गया तो फिर हम लोग आगे प्रोटोटाइप बनाएंगे, या फिर हम लोग कुछ चेंजेस होगा तो पहले से ही कर लेंगे ना। So we will not be investing too much time in our coding and designing. Instead of that, we will confirm our coding and then we will go ahead. And that's the beauty of this kind of user interface design. Normally, wireframe हम बनाते हैं Figma नाम के टूल से, तो you can use it free of charge है, या फिर पेपर पेंसिल लेके बना सकते हो। It is not something which is very tough. Just it is the confirmation from the client that this kind of design has been accepted by him. अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा आपका एफर्ट्स वेस्ट हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबके प्रोजेक्ट में ये सेम ही आने वाला है, दैट इज टर्म्ड एज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अगर आपका वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है तो, जैसे यहाँ पे वेब सर्वर में क्या होगा, बिजनेस सर्वर में क्या होगा, डेटा सर्वर में क्या होगा, यू आर हैविंग 3 लेयर्स ना। अगर आप लोग रिएक्ट एंड नोड यूज करने वाले हो तो मालूम है लोड आपका हो गया बैकएंड, राइट। देन डेटाबेस हो गया आपका मोंगोडीबी, right? So node I can consider as would be a business server, and then web server I can consider like a front end, the one which is going to be giving you the informations and all. तो ये हर एक सर्वर में आप क्या क्या रखने वाले हो, क्लाइंट उसको कैसे एक्सेस करने वाला है, that is being presented by using your deployment diagram. तो आर्किटेक्चर कैसे है आपका सिस्टम का, कौन से कंपोनेंट आप यूज करने वाले हो अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए, right? This has been shown by your deployment diagram. So 99% वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट डायग्राम ऐसा ही होता है, सिर्फ वर्क स्टेशन के जगह पे आप मोबाइल दिखा सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो छोटा सा डिजाइनिंग आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट वी आर यूजिंग अ 3 टायर आर्किटेक्चर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर, तो सबके पास वही है, डेटा सर्वर है, बिजनेस सर्वर है, एज वेल एज व्हाट योर वेब सर्वर भी है। सो दिस इज अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम फॉर द सेम, लाइक क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा,
सेल्स पर्सन कैसे एक्सेस करेगा? अगर आपके पास और भी लोग रहेंगे तो यू कैन ऐड अप दीज ऑल इन अवर डिप्लॉयमेंट डायग्राम। मूविंग अहेड, एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आता है फॉर टेस्टिंग। तो टेस्ट केसेस जो हम लोग बनाते हैं और टेस्ट केसेस बनने के बाद में वो टेस्ट का रिजल्ट पास फेल, उसके लिए बन जाता है आपका ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अगर रिक्वायरमेंट आपने टेस्ट केसेस उतने बनाए रहेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन है आपका रिक्वायरमेंट, फिर लेट्स अकाउंट होल्डर एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट्स न्यू विजिटर टू क्रिएट एन अकाउंट। तो इसके लिए आपने टेस्ट 4 बनाया, टेस्ट 5 बनाया, टेस्ट 6 बनाया, फिर फेल हो गया, मतलब क्या हो गया, यूजर कांट मूव बियॉन्ड द लॉगिन पेज कैप्चा। तो आप जो टेस्ट केसेस बनाते हो, कितने टेस्ट केसेस बनाए हैं, कौन सा रिक्वायरमेंट के लिए बनाया है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, ये आप सिंगल टेबल में प्रेजेंट करते हो। दैट इज टर्म्ड एज योर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। वापस एक बार आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली आपके डायग्राम क्रिएशंस के लिए आप कौन से टूल यूज कर रहे हो। वापस एक बार नहीं, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, बट सिस्टम बताते मैंने बीच में बता दिया था फिग्मा वगैरह। तो ट्रेडिशनल टूल से आपके पास विजुअल नाम का टूल आता है, स्टार यूएमएल टूल आता है, रिलेशनल रोज करके आता है, ड्रॉ डॉट आईओ आता है। सो दीज आर योर ट्रेडिशनल टूल्स व्हिच आर बीन देयर फॉर आवर वायरफ्रेम्स एंड ऑल। वी आर यूजिंग फिग्मा, दैट ऑलरेडी इज बीन टोल्ड टू यू। अभी आजकल एआई का जमाना है, तो एआई के भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज अ डायग्रामिंग एआई, काफी अच्छा है। ये सभी फ्री टूल्स आपको बता रहा हूं मैं, या फिर जिनको डेली के आपको 5 या 6 या 10 क्रेडिट मिल जाते हैं, जो आप यूज करते करते अपने अकाउंट्स में अपने डायग्राम जल्दी डेवलप कर सकते हो। क्विक डेटाबेस डायग्राम है, ये बेसिकली एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट इनपुट देने का उसका ईआरडी बनता है, वहां पे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। परमेंट डॉट जेएस है, ये सीक्वेंस डायग्राम, फ्लो चार्ट, ईआर, इसके लिए यूज हो सकता है। डिक्लरेटिव डायग्रामिंग है D2 करके, ये भी एक ओपन सोर्स टेक्स्ट बेस्ड डायग्रामिंग टूल है। ये हर एक टूल का आपको बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दोस टूल्स। लाइक dbdiagram.io है, दिस इज आल्सो वेरी गुड टूल। देन एक्सेलाइट ड्रॉ करके है, दिस इज आल्सो गुड टूल। प्लांट यूएमएल, दिस इज क्वाइट नाइस फॉर टेक्स्ट बेस्ड यूएमएल डायग्राम। मैं बहुत बार प्लांट यूएमएल को यूज करता हूँ। एंड diagrams.net है, राइट, draw.io, ये फ्री है, ब्राउजर बेस्ड टूल which is helping us to go for drawing all these diagrams. Now let's move ahead. अपना एक्टिविटीज मैंने बताया था वैसे ही, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, अगर आपको मास्टर्स करना है, सर्टिफिकेशन करना है, बहुत सारे कोर्सेज सामने दिख रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है मैंने कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। डोंट वरी, प्लीज कॉल अस, वी विल हेल्प यू फॉर द सेम। अगर आपको स्टडी अब्रॉड करना है तो आपका कंट्री सिलेक्शन से लेके आपका एप्लीकेशन, लोन, वीजा, एकोमोडेशन, all supports are being given by us, and we also run our placement driven courses for the Munstack as well as cyber security. So anybody would like to develop a career in security or inside the development as Munstack, then please connect to us. You can get an attractive fees price for the same, and we are driving the certification courses with the placement. Like 100% placement support will be given by us. So these are our key activities. So thanks a lot students for connecting with us. अच्छा, BSc IT और एंट्रेंस का कोचिंग तो अपने पास है ही, वहीं से तो आप लोग सब लोग कनेक्ट हुए अपने साथ में। एंड थैंक्स, कनेक्ट विद अस विद आवर सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, गूगल का भी लिंक है, यूट्यूब में तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारे लाइव वीडियो मेरे चलते रहते हैं दैट हेल्प अस टू गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स क्विकली। थैंक्स।